हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम यहाँ करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो है हम यहाँ पर पेपरों का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ पर पेपरों के अंतर्गत जो होगा एमसीक्यू भी होगा आपके समक्ष, क्वेश्चन आंसर भी होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, जो कि और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शब्द ही आपको नजर आएंगे जिसको आप लिख के भी समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर एमसीक्यू सोशल साइंस दैट्स इम्पोर्टेंट हियर। Then important for the exam view here, you know that Tripan Study Center has taken the most important question for the exam view here. You know that first MCQ questions arrive here. Identify the correct option that are describe the act given below here. You know that there is a three options here. Three is here. First of all here, the act was passed by the empirical legislative counseling here. And second here, it give a power to the government to be repress political activities. And third here, it is empower the government to detain political prisoner without trial. You know that there is a most important three statement here. An option here, a Royal Act, Vernacular Press Act, Government of India Act, Inland Immigration Act. You know that there is a 3 points is a focus only 1 point here. There is options is a 4, but one is correct here. One is correct, but correct. Who is the correct in this option? You know that is important. The act was passed by the empirical legislative counseling. First point, and they give power to the government to be repress political activity, and it empower to government time to political prisoner without trial. This act here is the knowledge, you know that is a Royal Act. Option A. Option A is correct answer. Royal Act. Royal according there is a Royal Act. There is the passed by the empirical legislative counseling, and Royal Act here is the government press political activity, and according to Royal Act there is a political prisoner without any trial. There is an important here. The next here, which place in the India has the artificial lake to be conserve water that dates to the 11th century? You know that is an important question. Option here, Delhi, Bhopal, Mumbai, Kolhapur. You know that is the most important option. Delhi, not about thing here. Mumbai, no. Kolhapur is nothing. But Bhopal is the right answer here. The place India is an artificial lake to the conserve water dated of 11th century. There is a Bhopal. The Bhopal is a correct answer. And the next question here, read the data given below and answer the question. Educational achievement of rural population of Uttar Pradesh as per the data given above, who has to the least percentage of literacy rate in rural population? You know that the examiner asked the question here, the least percentage of literacy rate in a rural population. You know that first of all here, literacy rate for a rural population, male is a 76% and female 54%. And literacy rate for a rural children in the age group 10 to 14 years, and there is a male is a 90%, female is 87%. And percentage rural children's age of 10 and 14 attend to the school, male 85, female 82. You know that our question here, least percentage of literacy rate in a rural population. Let's see our option here. The option here, first is a male, second is B is children, and the male and female, and the female. You know that two option is eliminated here. Children is nothing, and male and female both are impossible. But is a two answer is important, male and female. You know that there is a point here, a percentage show the minimum. There is the here of female. Female is a rural population is a 54%, and the rate of rural children is the female is a 87%, and there is the here children age of 10 to 14. There is a less of female.
You know that the answer here D, female. Female literacy rate is very lower here. That's important here. The next question here, which of the following option represent a potential measuring that can be taken to be mitigate their threat opposed on the tiger population and biodiversity? You know that's important here. That's important. And for here statement, beginning hunting, given to legal protection to their habitat and restricting trade in the wildlife. And second here, prohibiting their visit of public into the forest area. Third here, establishing a wildlife sanctuary and national park. And fourth here, conserving forest into reserve and protective forest. This is a four option. And what is the correct option here? Let's see option. The option here, first of all here, A, statement 1 and 2 are correct. Statement 2, 3, 4 and are correct. Statement 2 is correct and statement 1, 3, 4 are correct. You know that is important here. That is important. Where is the correct answer here? That's important. You know that first of all eliminated here. Here elimination here of promoting the visit of public into the forest area. That is eliminated here. But other is a reminder option that is correct. It means D option is a correct. Statements 1, 3, 4 are correct. That's important here. And the fifth question that's important, when the many countries of Europe come together to form the European Union, was chosen as its headquarter. That's important. That's many countries of Europe come together to form a European Union. And Dash was chosen as the headquarter. Who is here the headquarter here? There is a four option. Brussels, Paris, London, Zurich. You know that there is a four option. There is a very important. But answer here, Brussels. Brussels, there is option is here correct. Union Brussels was chosen as the headquarter. That's important answer here. Answer is A. On your screen, there is 6 question. Which of the following statement accurate distinguishes between the majoritarianism of power sharing? That's important. Which of the following statement accurately distinguishes as between majoritarianism and power sharing? You know that is the four option. Majoritarianism is imposes their dominance of the majority community, while power sharing imposes their sharing of power among different group. First point here, that majoritarianism is imposes there is a need for the conscious is buildings, while their power sharing imposes their executions of majority group. And see here, majoritarianism is imposes there is important accommodating majority interest, while the power sharing imposes their need for a majority rule. And the next here, the majoritarianism imposes their need for the peaceful revolutions, dissolution of their conflict with the power sharing versus their use of force to impose their majority as will. You know that this is the most important option, but one is correct here. And correct here A. Correct here A. Let's see. The majoritarianism imposes their dominance of majority community, while the power sharing imposes their sharing of power among the different group. That's important and important answer here. There is a sixth answer here. A. A is the most important here. The answer is A. 7 here question. There are two statements marked assertions and reasoning here. Mark your answer per the coded provided below. You know that there's important. Here assertions here, a democracy are based on political equality reasons. And reasons here, all the individuals have equal say to the elective representative. That's important here. And who is the option is correct? First here, both A and R is the true. And the R is the correct explanation of the A. That's important. Both A and R are true, and the R is the correct explanation of the A. And
See here, A is a correct but R is wrong, and D is A is wrong but R is correct. Note that there is a question is very near answer. Democracy are based on the political equality reasons. You know that that's important. Democracy are based on political equality. That is correct here. And here reasons all the individual have equal say to elected to the representative. That's important here. But answer is A. Both A and R are true. R is there a correct explanation of A. It means the option A is correct here. The next here, 8th, Rahul has a shake of cotton, but he is a need to the wheat, and Anshu has a shake of the wheat, and it is the need of cotton. Under the situation, both will be able to exchange their goods. In case of a sense such as a coincidence of wants, they may be not exchange their good. Which one of the following would be a best option that describe their mutual exchange of goods and eliminated their exchange of goods? You know that there is a most important question for the exam view. Option is interesting here. Double consideration of want exchanging commodity for commodity, and double coincidence of want credit on commodity. Double coincidence of want loan and commodity, you will see, and double combination of want and money. You know that as a fourth option that is the most important, but you have to knowing not to the A and B and C, but correct answer is only one here. That's important here. The correct option and there is answer here D. Double coincidence of want and money. That's important. D here. The next question here. You are a citizen of country that has a democratic form of government. You want to ensure that a system of power sharing in your country is effective and that no one branch of government has absolute power. Which of the following measuring should be meet this goal? That is important. And see, there is a fourth option here. The first option here, all power is concentrated in the hand of regulators only. You know that there's important, all power is concentrated in the hand of regulator only. Second here, power is divided between to the central government and the state prevalence with the each level having two open sphere of influence. That's important here. And C is a power is a separate among the relative executive and judiciary branches, with each branch having open responsibility and a power. You know that that's important here. But D here, power is a sharing among different level of government such as the national, regional and local government, with each having some degrees of autonomy. You know that there is a 4 A, B, C, D is option. That's the most important represent here. But answer is only one. Which of the following measures would be best meet this goal? The answer is a C. The C option is the most important answer here. C is the answer here. Power is a separate among the legislative, executive and judiciary branch, which each branch is having its own responsibility and power. And let's see next question. You know that see this a most important picture here. You know that next question is important for a picture basis. Analyze this picture. Let's see question here on these pictures. The question here, identify the painting for the option given below. You know that according to the picture painting here, the first of all Frankfurt Parliament, this stays Duma, the House of Parliament. You know that this picture is here, not a Duma, not the House of Parliament, not a Riksdag. There is a Frankfurt Parliament. You know that the option is A here, Frankfurt Parliament in this picture here. You know that's important. The next question is the most important here. Evaluate the impact of opening foreign trade on the global economy. By identify there is a appropriate statement among the following option. You know that for option on your screen. There is a first here, the choice of good in the market increase, and second here, producer from two countries closely compete against each other, and about the distance between there is the locations, and third here
for guns trade, thus a result in the concentrating the market or integration of markets in the different countries. And fourth option is there, the quality of the product is a way good. That's a fourth statement. But answer here, first option here, statement 1 and 2 are the appreciate. Statement 1, 2, 3 are appreciate. And here, all the statements are appreciate, but D is the only statement. Fourth is appreciate. You know that. That's important here. There is an importance here because there is eliminate here. There is the only statement. Fourth is appreciate. The fourth, the equality of the product away of good. You know that. That's the wrong here. The quality of product is away good. But other option, that's important. Other option is important. It means to the answer here a B. Answer here B. A statement 1, 2 and 3 are appreciate. That's important answer here. Statement 1, 2, 3 is appreciate. But here fourth option, the equality of the product is always good. There's a wrong option here. The next question, there is the most important, choose the correct option to the complete the statement. You know that there's the most important statement is complete here. The options here, if a government provide its a citizen a right and meaning to examine, there is a process of decision it is. That's important. It is an accountable government. It is a responsible government. It is a transparent government. And it is a stable government. You know that this is a four option that is the most important. But one answer is only correct. Which answer is correct? The option A, it is an accountable government. There is 12 answer here. A, unaccountable government here. The next 13 question, there is important. Arrange the following statement is a sequentially ordered based on the event that is pair of non-cooperation movement. You know that non-cooperation movement is the most important moment here. First of all here, General Dyer opened a fire at the large crowd gathering in the enclosed around Jallianwala Bagh. Second here, force resentment is carried out. There is a British government and the economical hardship faced by their people during the First World War. In the defect, there is the Ottoman Empire truly led is the formation of the Khalifa movement, and Gandhi is launched as a national wild satyagraha against the Rowell Act. That's an important for statement here, non-cooperation movement. But sequence by here arrangement, you know that. The option here A is a 4, 3rd, second one. B is a 2, 1, 4, 3rd. C is a 1, 4, 3rd and second, and D is a 1, 1st, 2nd, 3rd and 4th. You know that is the option is the most important. But first of all, arrangement is important here. Let's see again question. The first of all you see, there is an important. The first option, General does open at the large crowd gathering to the enclosed of ground of Jallianwala Bagh. That's the most important incident. But this is not a first here. Reason being here, the first regiment carry out the British government and the economical hardship faced by the people during the First World War. That is the first option. You mean there is the first option is a first order. Second is a first. There is a first regiment. You know that there is a people during the First World War. And according to this incident, second incident here, General Dyer opened the fire at the large crowd gathering in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. That's important. But Gandhi's launch is a nationwide satyagraha against the Rowell Act. That's the third. And fourth here, the defect of the Ottoman Empire Turkey lead the formation of Khalifa movement. Means the answer here, second, first, fourth and third. Let's see who is the option is correct here. It means the option is B is correct. Correct B option because the second, first, fourth and third means B option is correct here. The next question is important. If there is a descriptions by the transporters and the lorries refuse to transport vegetable, milk, etc.
from the rural area to the urban area, food will become scarce in the urban area, whereas a farmer will be unable to sell there is a products. Which of the following sector will be affected due to this situation stated above? You know that the question is correctly. Which following sector will be affected due to this situation stated above? There is important 14 here. First of all, primary and secondary sector is affected here. Secondary and tertiary, primary and secondary. Yeah, D, tertiary and primary. That's important. But you know that the three sector is effective here. Primary, secondary and tertiary. There is important. Mean C option is correct. D, tertiary, primary and secondary option is effective on this situation. The C answer is correct here. The next here, consider statement given below and choose the correct answer statement. The statement first here, Western print techniques and mechanical press were imported to the late 19th centuries as Western power established their outpost in China. That's the first statement. Second here, Beijing is become there is a hub of the new print culture and catering to be Western style schools. That's a two statement here. And who is the correct and who is the incorrect? Let's see. The first here statement 1 is correct and 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Both 1 and 2 are incorrect. Both 1 and 2 is correct. You know that is important. The answer here 1 is correct here. Western printed techniques is the mechanical press were imported to the later 19th century. That's important and right answer. But Beijing become a hub of the new print culture catering. This is not about the digestion here. This is a wrong answer. Means incorrect. The option A is the right answer. You know that the next question is important. 16th here. A question M. Give his a friend clue about types of soil that is suited for the growing cotton. Which of the following clue provided by the M would be most useful in the identify the ideal types of soil? You know that is a fourth option clue here. It is well known for its capacity to be hold of moisture. Cotton is the hold of moisture. And second here, it will turn yellow when it is hydrated. And third, it is rich of the conkur and bhangar nodules. And fourth, it is a well-drained loamy soil. There's a four types is options. This is the most important clue here. And let's see the option. The clue 1 is correct. Clue 1 and 2 is third correct. Clue C is 1 and second correct. D is here clue 4. But answer is the most important variable here and important. That is the answer. Here's important A. It is a well known for the capacity to the hold of moisture. You know that cotton is grow is a moisture environment. That's important. It's a well done now for it is a capacity to the hold of moisture. Means clue A is a correct answer. Clue A is the right answer here. The next question is the most important here. 17. Choose the right option to fill in the blank. The emergence of dash is directly connected to the rise of political party. Who is directly connected here? Monetary democracy, direct democracy, representative democracy, yeah, constitutional democracy. There is a 4 option. That's important. But answer is only one. Not a monetary democracy, not directive democracy, and not a constitutional democracy. The answer is a C. Representative democracy here. The C is a representative democracy. The next question here, the process of integration between different countries called as privatization, globalization, liberalization, competitions. You know that is an important option here. There is an answer here that's important. Here's the not a privatization, not a liberalization, not a competitions. Means answer is B.
globalization. The B is the correct answer is globalization here. The next 19 question, which of the following statement is a correct keeping their requirement of formation of government? First statement here, it is a possible for independent candidate to form a government. First statement here. Second statement here, government formation is exclusively reserved for political parties. And third statement here, the formation of government is limited to only selected political parties. And the fourth statement here, government can only be formed by the political parties that are elected and hold a majority. That's important fourth statement here. But let's see option. The option here, statement A is 1 and 2 are right. Statement is B here option. Statement 1, 2nd, 3rd are right. And C statement 3rd is right. And D is the only statement 4th is right. You know that's important. But let's see, there is options here. It is a possible to independent candidate for a government. That's rejected here. That's not a right answer. And second here, government formation is exclusively reserved for political parties. But that's not an answer here. But statement third is the formation of government is limited, is only elected political party. That's not a fair here. You know that's only fourth option. The government can only be formed by the political party that are elected and holded a majority. That's the right answer is here. But option is who is there a fourth answer right? Let's see. The answer is here D. Only statement fourth is right answer. And there is the last question here. A question 20 is the most important. Miss S approached a bank nearby to the available loans for their own business, as well as a self-help group which is operating in her village. The bank rejected her loan application, whereas the self-help group accepted to be supported here by the providing their loan. Which one of the following documents is required by the bank but not required by the self-help group to the approve Miss S is a loan application for the business? You know that there is a 4 option. Application for a loan, agreement letter, document on collaterals, and demand promissories is not to take or deliver later. That's an important document here, but the option C is correct answer here, because application for a loan is important. Agreement letter, that's not important. Demand personally not a take as delivery letter, but C document on collateral, that's important for the taking of the loan here. The answer C document on collateral, that's important here. तो यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष लाया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि त्रिपाण स्टडी सेंटर में हर चीज़ जो होगा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब यहाँ पर 10th क्लास के जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो हमारे समक्ष आया है, इसके अंतर्गत अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है MCQ। आपको इसी प्रकार से जो है MCQ आपको प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो ये सिलसिला अब चलता ही रहेगा। तो अभी सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए, तभी समय पे जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हमारा MCQ का जो है पहला क्वेश्चन यही आता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से कि नीचे दिए गए अधिनियम का वर्णन करने वाले सही विकल्प को पहचानें, यानी आपको सही विकल्प को पहचानना है। यह अधिनियम इंपीरियल लेजिकल काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। कौन सा, किसके लिए जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव्स काउंसिलिंग द्वारा पारित किया गया था? इसे सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति भी दे दी। किसने दे दी? इसे सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार भी दे दिया। आखिर कौन अधिनियम पास किया गया, किस प्रकार का अधिनियम था जिसके कारण सारे तीनों के तीनों अधिकार उनको दिए गए? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी 4 हैं, उन्हीं में से एक आंसर जो होगा करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर विकल्प हमारे समक्ष आया है। पहला तो है रॉयल एक्ट, दूसरा है वेनिक्यूलर एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, अंतर्देशीय प्रवास अधिनियम। देखिए
यहाँ पर अगर हम भारत सरकार अधिनियम देखें तो भारत सरकार तो ये थी नहीं, क्योंकि इंजीनियर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ भारत सरकार तो थी नहीं। और दूसरी बात देखिए अंतर्देशीय उत्वास अधिनियम, तो इसका तो यहाँ सवाल भी नहीं उठ रहा है। अगर हम बात करें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की तो इसमें थोड़ी सी बात तो आती है बट इतनी करेक्ट नहीं है जो 3 स्टेटमेंट बता रही है। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ ए रह गया। तो देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि इससे आप इससे भी पहचान सकते थे कि रॉयल एक्ट के रिगार्डिंग जो है बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का सरकार को अधिकार दिया गया था, और ये तीनों स्टेटमेंट सही थे और इसके अंतर्गत सिर्फ रॉयल एक्ट में ही तीनों बातों को कही गई थी। इसलिए ऑप्शन ए जो है रॉयल एक्ट जो थी उसमें अधिनियम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित भी किया गया था रॉयल एक्ट, ये बात सही है। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति भी दी थी, किसने? रॉयल एक्ट ने। और इसे सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का भी अधिकार रॉयल एक्ट ने दिया था। इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए पे जो है आप टिक लगाइए। दूसरा क्वेश्चन हमारे समक्ष आया कि भारत में किस स्थान पर जल संरक्षण के लिए 11वीं शताब्दी के एक कृत्रिम झील है? 11वीं शताब्दी में एक कृत्रिम झील है भारत के किस स्थान पर जो है जल संरक्षण के लिए? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कोल्हापुर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो ऐसा हमें देखने को कहीं नहीं मिला है, और कोल्हापुर में देखें तो कोल्हापुर में भी नहीं है। अब मुंबई में भी भारत में जल संरक्षण के लिए 11वीं शताब्दी में कृत्रिम झील नहीं बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एक ही बच गया, भोपाल। तो राइट आंसर आपका है भोपाल, बी। यानी दूसरे का आंसर है बी, भोपाल, जहाँ पर जो है जल संरक्षण के लिए 11वीं शताब्दी में एक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष तीसरा क्वेश्चन आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नीचे दिए गए डाटा को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धियां ऊपर दिए गए आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे कम किसका है? अब सबसे अधिक जो है साक्षरता दर में सबसे प्रतिशत किसका है? अब देखिए ग्रामीण आबादी की साक्षरता दर देखें तो पुरुषों को 76% है, महिला का 54, यानी महिला यहाँ पर पिछड़ रही है। 10 से 14 वर्ष आयु के ग्रामीण बच्चों का साक्षरता दर जो है पुरुषों में 90%, महिलाओं में 87%। स्कूल जाने वाले 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रतिशत जो है पुरुषों में 85 और महिलाओं में 82। अब यहाँ तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि महिलाओं की प्रतिशत में हर जगह गिरावट ही देखने को मिला है। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हो पुरुष, बच्चे, पुरुष, महिलाएं। अब देखिए बच्चा में पुरुष भी होता है, महिलाएं भी होती है, तो बच्चे वाले ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत ही है। उसके बाद पुरुष और महिलाएं दोनों को तो ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों की साक्षरता दर सामान्य हो, तो सी भी ऑप्शन गलत हो गई। अब हमारा द्वंद्व जो रह गया है ए और डी में रह गई। तो देखा जाए तो पुरुषों की देखा जाए तो यहाँ पर पुरुषों में जो है 76% है और वहीं महिला का 54 है। पुरुषों में 90% है, महिला में 86 है। पुरुषों में 85 है तो महिला में 82 है। तो जर्नल सी बात रह गई यहाँ पर कि महिलाओं की शिक्षा दर जो है बहुत कम है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही है। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण है और ये हमें एनालाइज करके भी समझ सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष चौथा क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभावित उपायों का प्रतिनिधित्व करता है जो बाघों की आबादी और जैव विविधता का उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए उठाया जा सकता है। यानी चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हमारे समक्ष 4 जो है रखे गए हैं बातें कि शिकारी पर प्रतिबंध लगाना, उनके आवासों का कानूनी संरक्षण देना और वन्य जीवन को व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है, तो होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वन क्षेत्रों में जनता के जाने पर रोक। वन क्षेत्रों में जनता को जाने को रोक लगाना चाहिए कि जनता आजकल बहुत तेज़ है, वो क्या करती है वनों क्षेत्र में जाती है, जानवरों को उकसाती है और कई तरह दुर्घटना भी हो जाती है। तो बात यहाँ पर भी कुछ हद तक सही कहा गया है। तीसरी बात देखें तो वन जीवन अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, तो इसमें भी कोई गलत रास्ता नहीं है, सही बात बताई गई है। वनों को आरक्षित एवं संरक्षित वनों में परिवर्तन करना, वनों को आरक्षित करना, संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन तो हमने तीनों चारों देखा, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
विकल्प भी हम देख लेते हैं। अब देखिए विकल्प ये कहता है कि ये कथन ए और 2 जो है सही है। यहाँ पर 2, 3, 4 सही बताया गया है। कथन 2 जो है सही है, कथन 1, कथन 3 और कथन 4 जो है सही है। तो आपको किसी एक कथन को जो है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर तो हमने सबको जो है विस्तार पूर्वक जाना और काफ़ी महत्व रखा। लेकिन देखा जाए तो वन संरक्षण के अंतर्गत एक बात जो थोड़ी सी कमज़ोर यहाँ नज़र आई, वो थी ऑप्शन सेकेंड कि वन क्षेत्रों में जनता के जाने पर रोक। वन क्षेत्रों में जनता जाने पर रोक, ये किसी तरह से भाया नहीं। यानी देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है। अब जब दूसरा ऑप्शन सही नहीं है तो चलिए पहले ए में जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा तो एलिमिनेट हो गया, पहला ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बी में देखिए उसमें भी दूसरा बात देखी गई है, दूसरी बात लिखी गई है, दूसरा रखा गया है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। और सी तो जो है दूसरी बात को ही सही कह रहा है, तो सी भी यहाँ ख़त्म हो गया। रह गया डी। डी में दूसरा ऑप्शन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आंसर हो गया डी। कथन 1 भी सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, चौथी बात सही है। यानी देखिए हम एलिमिनेशन मेथड लगा के भी आंसर को सोल्यूशन कर सकते, क्योंकि यही बात जो थी बहुत ही अटपटा सा था कि वन क्षेत्रों में जनता के जाने पर रोक लगा देना चाहिए। अब देखिए ये बात इसके अंतर्गत नहीं, जैसे जनता जाती है तो कई जनता तो ऐसी भी होती है बेवकूफ़ी हरकतें करती है, पेड़ पौधे काटते हैं, जानवरों को शिकार करते हैं, लेकिन जनता की बात कही गई है, तो ये थोड़ी सी अटपटी है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ही मैंने दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट किया, 3 के 3 ऑप्शन जो थे एलिमिनेट हो गए और एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है MCQ करने के लिए जो है रखा गया है, और ये हर क्लास बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। कंपटीशन वाले बच्चों भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा 5वां क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब यूरोप के कई देश यूरोपीय संघ बनाने के लिए एक साथ आए तो डैश को इसके मुख्यालय के रूप में चुना गया। यानी जब यूरोप देश जो है एक यूरोपीय संघ बनाने के लिए आए तो किस देश को जो है मुख्यालय के रूप में चुना गया। ब्रसेल्स को चुना गया, पेरिस को चुना गया, लंदन को चुना गया, ज्यूरिख को चुना गया। क्वेश्चन यहाँ साफ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब यूरोपीय संघ बनाए गए तो सबसे पहले किसको मुख्यालय चुना गया। आंसर क्लियर है। अब देखिए पेरिस तो था नहीं, लंदन था नहीं, ज्यूरिख था नहीं, तो इसका मतलब ए ही होगा, जो ब्रसेल्स जो था चुना गया था। यानी इसका 5वें का जो आंसर है ए, ब्रसेल्स, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंख्यकवाद और सत्ता के साझेदारी के बीच सटीक अंतर करता है। यानी अंतर को करने वाली बातों को जो है हमें यहाँ बताना है। पहला आंसर है बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देता है, जबकि सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर देता है। देखिए ये बात काफ़ी सटीक और इम्पोर्टेंट बताई गई है। बहुसंख्यकवाद सर्वसम्मति निर्णय की आवश्यकता पर जोर देती है। बहुसंख्यकवाद सर्वसम्मति निर्णय की आवश्यकता पर जोर देती है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि सत्ता की साझेदारी अल्पसंख्यक समूहों के बहिष्कार पर जोर। देखिए सत्ता की साझेदारी कभी इस बात पर तो जोर देती नहीं, क्योंकि साफ ही आंसर गलत है कि अल्पसंख्यक समूहों के बहिष्कार पर जोर देती है। इसको बी को तो एलिमिनेट ही कर दीजिए, ये कभी नहीं सोचता बहिष्कार करने की बात कही। सी कहता है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हितों की समायोजित करने पर महत्व देती है, चलो ज्वाइंट करने की बात करती है। जबकि सत्ता की साझेदारी बहुसंख्यक शासन की आवश्यकता पर जोर देती है। यानी देखा जाए सत्ता की साझेदारी बहुसंख्यक शासन की आवश्यकता पर जोर देती है, ये भी बात कहीं खटक रही है मन में। उसका डी देखते हैं, बहुसंख्यकवाद संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देता है, शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता। जबकि सत्ता की साझेदारी बहुमत की इच्छा को थोपने के लिए बल को प्रयोग पर जोर देती। क्या बात ऑप्शन दिया यार, इतनी घटिया ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत थी, कुछ तो मिलता जुलता होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर बात ही घटिया बोल रहा है कि बहुमत की इच्छा को थोपने के लिए बल का प्रयोग पर जोर देता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? सत्ता की साझेदारी में से थोड़ी होता है, अगर ऐसा होगा तो डायरेक्ट इसको रिजेक्ट कर दी जाएगी। यानी देखा जाए तो यहाँ पर 2 तो एलिमिनेट डायरेक्टली हो गए, बी और डी डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। हमारा यहाँ द्वंद्व जो उठ खड़ा हुआ है वो ए और सी पे, लेकिन देखा जाए तो सी भी इतना कुछ अच्छा नहीं बताता, क्योंकि ये भी डाउट क्लियर नहीं करता है। बहुसंख्यक शासन की आवश्यकता पर जोर देती है, ये भी बात गलत है। यहाँ ऑप्शन जो हमने पढ़ा भी है ये आंसर सही है, क्योंकि ये बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व पर जोर देती है, जबकि सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर देती है। यानी देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है 6वें क्वेश्चन के लिए सटीक है, इसलिए ए ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और आंसर भी ए है।
उसके पश्चात आता है हमारा 7वां क्वेश्चन। देखिए, दो कथन अभिव्यक्तन और कारण के रूप में चिन्हित है, दिए गए कोड के अनुसार अपना चिन्ह को अंकित करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, रीजनिंग के अंतर्गत आ जाता है आपको क्वेश्चन। और यहाँ पर कथन जी ये बोलता है कि लोकतंत्र राजनीति समानता पर आधारित है। चलिए, लोकतंत्र राजनीति समानता पर आधारित है। लोकतंत्र में सबको सामान्य अधिकार दी गई, ये बात सत्य है। प्रतिनिधि को चुनने में सभी व्यक्तियों का सामान्य अधिकार, देखिए ये भी बात सही है। यानी यहाँ पर तो लगता है दोनों ही सही है। तो देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में ऐसा है। ए और आर दोनों सत्य हैं, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए, ये तो बात ऑप्शन हम रखते हैं, इंपॉर्टेंट में ही आ गया। दूसरा, ए और दोनों सत्य हैं, ये भी बात सही है। आर ए की सही व्याख्या, चलिए हम ए बी तो चलिए एकदम सही बता रहा है। अब ए सही है लेकिन आर गलत है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों हमने सही बोली है। देखा जाए तो डी बताता है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए देखिए, हमारा सी और डी एलिमिनेट हो गए हैं। हमारा प्रतिद्वंदी जो हो गए हैं, दो में हो गए, रह गए हैं ए और बी में रह गए हैं। लेकिन बात यहाँ पर दोनों सत्य है। पहले स्टेटमेंट में दोनों के सत्य सही है, ए और दोनों सत्य है, दोनों में यही बात लिखी है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ यही आया है कि आर ए की सही व्याख्या है। देखिए, व्याख्या की बात यहाँ गलत आ रही है, स्पष्टीकरण किया है, स्पष्ट किया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वें का देखा जाए तो ए काफ़ी सत्य है कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण यानी सही उसने परिभाषित किया है। तो ये हमारा 7वें का जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष 8th क्वेश्चन आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, राहुल के पास कपास की एक बोरी है लेकिन उसे गेहूं की ज़रूरत है। देखिए, राहुल के पास कपास की एक बोरी है लेकिन उसको गेहूं चाहिए। अनुज के पास गेहूं की एक बोरी है और उसे कपास जरूरी है। इस स्थिति में दोनों अपने माल का आदान प्रदान कर सकेंगे, क्योंकि जनरल सी बात है, आदान प्रदान तो होता होगा, ये दोनों की दोनों चीज़ें आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं के ऐसे संयोग को संभव में अपने माल का आदान प्रदान नहीं कर सकती। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होगा जो वस्तुओं के पारंपरिक आदान प्रदान का वर्णन करता है, वस्तु के आदान प्रदान के समाप्त करता है। देखिए, इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा इन दोनों का आदान प्रदान को जो परिभाषित करती हूँ। पहला है चाहत का दोहरा संयोग, वस्तुओं से वस्तुओं का आदान प्रदान। चाहत का दोहरा संयोग ये तो नहीं हो सकता। चाहत का दोहरा संयोग वस्तुओं का ऋण, ये देखिए ये भी गलत बिल्कुल बताया गया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। चाहत का दोहरा संयोग वस्तु पर कर्ज, ये भी कहीं हद तक गलत ही है। चाहत का दोहरा संयोग और पैसा, देखिए पैसे की बात आ जाती है तो पैसे से तो हम आदान प्रदान कर सकते हैं। चाहत हमारी है, दोहरा संयोग बना है तो पैसा, यानी देखा जाए तो यहाँ पर 8 का डी ऑप्शन जो है सही रहेगा, क्योंकि बाकी 3 जो है उस बात पे खरी नहीं उतरे जो हमारे लिए ज़रूरी था। यहाँ पर डी है चाहत का दोहरा संयोग, पैसे, तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है 9th क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि आप एक देश के नागरिक हैं जहां सरकार का लोकतंत्र स्वरूप है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके देश में सत्ता समझदारकरण की प्रणाली प्रभावी हो और सरकार किसी भी एक शाखा के पास पूर्ण शक्ति न हो, जो होना भी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इस लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है सारी शक्तियाँ विधायकों के हाथों में ही केंद्रित हो। अब ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। अगर सारी शक्तियाँ विधायकों के हाथों में चला जाएगा तो जनरल सी बात है कैसे यह सत्ता की साझेदारी हो पाएगी। तो देखा जाए यहाँ पर ये जो है बिल्कुल ही गलत बात बताई गई है, तो ये तो चलो एलिमिनेट हो गया। सत्ता केंद्र सरकार और राज्य तथा प्रांतों के बीच विभाजित किया गया है और प्रत्येक सदर का अपना प्रभाव क्षेत्र। चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बता रही है। अगला देख लेते हैं, विधायी कार्यकारी और न्याय शक्तियों के बीच शक्ति के अलग किया गया, प्रत्येक शाखाओं की अपनी जिम्मेदारी और शक्तियाँ होती। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात बताई गई है। डी देखते हैं, सत्ता सरकार के विभिन्न सत्रों जैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच साझा किया जाए, प्रत्येक सतर पर कुछ हद तक स्वामित्व होता ना। ये गलत बात है, स्वामित्व की बात कहाँ से की जा सकती है। तो डी भी चलिए एलिमिनेट हो गया। हमारा द्वंद्व रह गया बी और सी में। तो बी और सी में से देखा जाए सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य प्रांतों के बीच विभाजित किया जाए। सत्ता को हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित कर देंगे तो प्रधानमंत्री जी कहाँ जाएंगे फिर। तो ये तो गलत बात बता रही है। तो बी भी हमारा जो हो गया यहाँ पर दोस्तों एलिमिनेटेड हो गया। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है, सी,
क्योंकि विधायक, कार्यकारी और न्याय शाखाओं के बीच शक्ति को अलग किया गया है और ये बात सत्य है। प्रत्येक शाखा की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनकी शक्तियां हैं। तो हमारा 9वें का जो आंसर आ गया सी, जो सही है। ये जो आप चित्र देख रहे होगे, सोच रहे होगे कि चित्र यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारे इसी चित्र पे आधारित है। आप देख सकते हो कि किसी देश का ये जो है एक पार्लियामेंट जैसा नज़र आ रहा है। हमारा क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है और ये एग्जाम व्यू में ऐसे ही क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सोच में पड़े रहते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करें कि ना करें, कहीं पछताना ना पड़ जाए। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर बहुत महत्वपूर्ण है। 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए यहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं और सभी इम्पोर्टेंट है। मेरा विश्वास है कि इन क्वेश्चनों को अगर आप करके चले जाते हो एग्जाम में, तो दुनिया में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्याप्त है और एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्वेश्चन भी देखिए, चित्र है, ये तो लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो कोई संसद ही होगा, कोई लोकसभा जैसे ही चित्र बने हुए हैं, क्योंकि इतने लोग तो यहीं पे बैठते हैं और इसका ऊंचाई भी काफ़ी दिख रही है, ऊपर भी जनता मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बताया गया है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए विकल्पों में पेंटिंग को पहचानिए। जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र को आपको पहचानना है। ये देखिए, संसद भवन तो हमारा नहीं हो सकता, संसद भवन तो है ही नहीं। डूमा भी ये हो नहीं सकता। रेस्टगॉर्ड और ये जो है फ्रैंकफर्ट संसद। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन हैं: फ्रैंकफर्ट संसद, रेस्टगॉर्ड, ड्यूमा संसद भवन। चलिए, संसद भवन तो यह है नहीं, डी तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। डूमा तो कहीं तक हद तक नज़र भी नहीं आ रहा है। अब हमारा प्रतिद्वंद जो होगा रेस्टगॉर्ड और फ्रैंकफर्ट संसद के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है रेस्टगॉर्ड नहीं है, आंसर ए है फ्रैंकफर्ट संसद। तो आप समझ गए हो, जो मैं दिखा रहा था चित्र जो है आपको दिख रहा है, वो कौन सा संसद है? फ्रैंकफर्ट संसद। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 11 है: निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कथनों की पहचान करके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खुले विदेशी व्यापार के प्रभावों का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर का क्वेश्चन साफ है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खुले विदेशी व्यापार के प्रभावों का हमने मूल्यांकन करना। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर है: बाजारों में वस्तुओं की पसंद बढ़ जाती है, 2 देशों के निर्माता अपने स्थानों के बीच की दूरी के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ये भी बात सही है। इस प्रकार विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ा जाता है या बाजारों का एकीकरण किया जाता है। उत्पादन की गुणवत्ता हमेशा अच्छी होती है। तो ये तो हमारे कुछ बात थे। अब ऑप्शन देखते हैं क्या बताती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ कथन 1 और 2 उपयुक्त है। चलिए 2 उपयुक्त है कि देखा जाए। बी कहता है कथन 1, 2 और 3 उपयुक्त है। सी कहता है सभी कथन उचित है। देखिए, सभी तो हो नहीं सकती है, तो सी तो हमारा यहीं से गया। डी केवल कथन डी जो है उपयुक्त हो सकते, क्योंकि हमने कई आंसर सही देखे थे। तो यहाँ पर डी भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारा द्वंद्व जो रह गया किसमें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। द्वंद्व रह गया हमारा ए और बी में। तो ए और बी में देखा जाए तो कौन सी बातें सही होगी, क्योंकि देखा जाए तो हमारा यहाँ पर चौथा तो एलिमिनेट हो गई पहले ही, क्योंकि हमने इसको माना ही नहीं। तीसरा देखें तो इस प्रकार विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ा जाता है। चलिए, जोड़ने की बात सही है, या बाजारों का एकीकरण किया जाता है, ये भी बात सही है। इसका मतलब तीसरा भी सही है। 2 तो हमारे सही थे, तीसरा भी बात सही दिखाता है, और तीसरा ए ऑप्शन में तो है ही नहीं, यानी ए भी गया। ए चला गया, सी चला गया, डी चला गया, तो रह क्या गया? ए। कथन 1, 2 और 3 उपयुक्त है, तो हमारा आंसर भी जो है बी है। बी आंसर उपयुक्त है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष 12वां क्वेश्चन आया है: कथन को पूरा करने के लिए सुधार विकल्प चुनें। यानी यहाँ पर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। क्वेश्चन: यदि कोई सरकार अपने नागरिक को निर्णय की प्रक्रिया के जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान करता है तो वह डैश है। अब देखिए क्या हो सकता है। एक जवाबदेह सरकार हो सकती है, एक जिम्मेदार सरकार हो सकती है, एक पारदर्शी सरकार हो सकती है, एक स्थिर सरकार हो सकती है। देखिए,
एक स्थिर सरकार तो हमारे देश में संभव है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरकार बदलती रहती है। तो ये तो ऑप्शन गया। एक पारदर्शी सरकार हो, ये तो बात सही है कुछ हद तक। एक जिम्मेदार सरकार, देखिए सरकार है तो जिम्मेदार तो होगी होगी, तो इस बात को तो हम लेके चल ही नहीं सकते। यानी देखा जाए तो हमारा यहाँ पर बी और डी जो है एलिमिनेट हो गया। हमारे और समक्ष जो अब ऑप्शन रह गया वो ए रह गया और सी रह गया। सरकार को पारदर्शी होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक जवाबदेह सरकार भी होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन ये सही होती है, क्योंकि एक जवाबदेह सरकार होनी चाहिए। कोई गलती कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको जवाबदेह होना ही चाहिए। यानी ऑप्शन ए जो है 12वें का सही आंसर है। ऑप्शन ए, एक जवाबदेह सरकार होना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है 13 क्वेश्चन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन को सरकार देने वाली घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित कथनों को अनुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके समक्ष यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों को जो है सही क्रम में अरेंजमेंट करना है आपने, कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, कौन उसके बाद आया। तो पहला जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के बंद मैदानों में एकत्र भारी भीड़ पर गोली चलवाई। चलिए ये बात सही थी, असहयोग आंदोलन होने का ये कारण सबसे बड़ी थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जबरन भर्ती और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों की हुई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बात सही है कि ब्रिटिश सरकार जबरन जो है भर्ती कर रही थी और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत नुकसान झेलना पड़ा, ये भी बात सही है। युद्ध को ऑटोमन साम्राज्य के हार के कारण खिलाफत आंदोलन गठन हुआ, ये भी बात सही है। गांधी जी ने रॉयल एक्ट को विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह चलाया, ये भी बात सही है। चारों बात यहाँ पर असहयोग आंदोलन के अंतर्गत सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि इनको एक अनुक्रम में हम व्यवस्थित करना है, यानी क्रम में हमें, यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर ए है, चतुर्थ हुआ पहला, गांधी जी ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रवाद सत्याग्रह चलाया। चलिए ये तो कुछ हद तक हमें रास नहीं आ रही है, कैसे हो सकता है, यानी चतुर्थ पहला दिया हुआ है, ये तो होना संभव नहीं है। तो इस बात को तो हम लेकर नहीं चल सकते। पहला द्वितीय, पहला तृतीय, यानी द्वितीय पहला तो देखा ब्रिटिश सरकार दी जबरन भर्ती, तो चलो हो सही बात है, ब्रिटिश सरकार ने भर्ती चलाई तभी जाके सब कारनामा हुआ। बी हमारा महत्वपूर्ण ऑप्शन में आ जाता है। सी पहला है, तो पहला जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को बंद करके एकत्र भारी भीड़ पर गोली चलाई, ये नहीं हो सकती, सी तो एलिमिनेट हो ही गया। डी है हमारा, भी प्रथम है, क्योंकि प्रथम को तो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, तो सी और डी जो है हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारा द्वंद्व जो रह गया ए और बी में, लेकिन बी में देखा जाए तो गांधी जी ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया। देखिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह तो चलाया, लेकिन क्यों चलाया, आप देखिए हमारा ए जो ऑप्शन है वो भी अब यहाँ पर दलदल में फंस गया है, क्योंकि ए जो है नहीं हो सकता, पहले कारण तो हमें पता होना चाहिए ना। तो ऑप्शन तो हमारे समक्ष अब एक ही रह गया है, बी। अब बी देखिए क्या है, हम करके देखते हैं। बी में जो है हमारा द्वितीय यानी दूसरा दे रखा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन भर्ती और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को हुई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चलिए ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये पहला ऑप्शन में आ सकता है। उसका पहला ऑप्शन लिया गया है, इस कारण जो है जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के बंद में कत्ल। देखिए जब जबरन भर्ती हो रही थी और प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक प्रभाव था, तो लोग जो है इसके लिए इकट्ठा कहाँ हुए थे, जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग में हुए थे, जहाँ पर डायर ने जो है गोलियां की बरछाड़ चला दी। तो ये बात सही है। अब यहाँ चौथी बात यह थी, गांधी जी ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध, जो रॉयल एक्ट बनाई गई थी, उसके विरुद्ध जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया, ये भी बात सही है। और तीसरा, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के हार के कारण खिलाफत आंदोलन का गठन भी हुआ। तो इसका मतलब है बी सही आंसर है, बी जो है ये सही क्रम बताई गई है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है, यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा जब साधन उत्पन्न किया जाता है और लॉरी ग्राम क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में सब्जी दूध आदि परिवहन करने से इनकार कर देता है, यानी सब्जी उब्जी भेजना जो है शहरों में बंद कर दिया जाता है, तो शहरी क्षेत्रों में भोजन दुर्लभ हो जाएगी, जबकि किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ होंगे। बात सही है। ऊपर बताई गई स्थिति के कारण निम्न में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा, यानी कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा। देखिए प्राथमिक भी होगा प्रभावित और माध्यमिक भी होगा, माध्यमिक भी होगा, तृतीयक भी होगा, तो ये तो सारे होंगे, लेकिन ऑप्शन तो बात नहीं खा रहा है। हम तृतीयक मानते हैं तो पहले ऑप्शन में तृतीयक तो है नहीं, और प्रथम मानते हैं तो दूसरे ऑप्शन में प्रथम नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, दोनों के दोनों हो गए। बात अगर हम डी की बात करें तो तृतीय और प्राथमिक,
जब हमने प्राथमिक, इसमें देखिए हमने जब द्वितीयक को भी हमने इम्पोर्टेंट माना, माध्यमिक भी को भी माना इम्पोर्टेंट, तो यहाँ तो डी में माध्यमिक भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन जो होगा सी, तृतीयक, प्राथमिक और माध्यमिक। तो आप एलिमिनेट करके भी समझ सकते हो क्वेश्चनों का आंसर। एमसीक्यू करना आसान होता है, लेकिन एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए कि कौन ऑप्शन रहेगा, कौन ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और सही उत्तर कथन चुनें। देखिए 19वीं सदी के अंत में पश्चिम जो है मुद्रण तकनीक और यांत्रिक प्रेस का आयात किया गया, क्योंकि पश्चिम शक्तियों ने चीन में अपनी चौकियां स्थापित की। बात सही है। ब्रिजिंग एंड केंद्र बन गया और नई प्रिंट संस्कृति पश्चिम शैली स्कूलों में पूर्ति हुई। ये भी कथन कहीं हद तक सही है। अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन से कथन सही है और कौन सा कथन जो है गलत है। अब देखिए बात तो यहाँ पर दोनों सही कही है, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन है कथन ए सही है और 2 गलत है, कथन 1 गलत है और 2 सही है। दोनों ही गलत है, दोनों ही सही हैं। तो ये दोनों तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एनालाइज करते हैं तो ब्रिजिंग एंड केंद्र बन गए, ब्राजिंग जो है केंद्र बन गया, जो कि गलत है। प्रिंट संस्कृति पश्चिमी शैली के स्कूलों की पूर्ति थी, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन 1 सही है। तो इसका मतलब हुआ ए आंसर सही है कि कथन 1 सही है और दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सत्य सिद्ध हुआ। देखिए हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि एम ने अपने मित्र को उस प्रकार की मिट्टी के बारे में संकेत दिया जो कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। आदर्श प्रकार की मिट्टी की पहचान करने में एम द्वारा प्रदान किया गया निम्नलिखित कौन सा सुराग सबसे उपयोगी होगा। यानी यहाँ पर 4 सुराग उसने दिए हैं, 4 क्लू है। 4 क्लू में से 1 क्लू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और वही क्लू हमें ढूंढना है। और यहाँ क्लू है, यह नमी धारण करने अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, ये काफ़ी अच्छा क्लू है। हाइड्रेट होने पर यह पीला हो जाती है, ये भी है। यह अंकुरण और भंगुरी पिंडों से भरपूर है। यह अच्छी जल निवास वाली डोमेट मिट्टी है। चलिए देखते हैं ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर सुराग 1 सही है, सुराग 1 और 3 सही है, सुराग 1 और दूसरा सही है, सुराग चौथा सही है। देखिए यह अच्छी जल निकास वाली डोमेट मिट्टी है, ये बात तो जमी नहीं, तो यहाँ पर चौथा एलिमिनेट हो गया। चौथा जो है एलिमिनेट हो गया। देखा जाए तो हमारे समक्ष जो है अगला है सुराग 1 और दूसरा कहता है हाइड्रेट होने पर पीली हो जाती है, ये भी बात गलत है। यानी दूसरा तो यहाँ गलत ही हुआ, यानी सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। प्रतिद्वंद हमारा रह गया, ठीक है। हमारा जो रह गया यहाँ पर तीसरा और पहला में, तो देखा जाए तो तीसरा ये अंकुर और भंगुर पिंडों से भरपूर है, चलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा आंसर ए सुराग 1 सही है कि यह नमी धारण करने वाली क्षमता के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि हमें पता है कि कॉटन की फसलें ऐसी ही जगहों पर की जाती है जहाँ पर नमी धारण करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हो, उसी जगह जो है कॉटन कृषि की जा सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही आंसर है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है 17वां क्वेश्चन कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनें। डैश का उद्भव सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के उदय से जुड़ा हुआ है। अब क्या जुड़ा हुआ है राजनीतिक दलों के उदय से, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए मौद्रिक लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र। देखिए मौद्रिक लोकतंत्र तो हो नहीं सकती, तो साफ गलत यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी थोड़ी हद तक सही है, संवैधानिक लोकतंत्र भी सही है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र काफ़ी हद तक सही करता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का उद्भव सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के उदय से हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी सही जाता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है करेक्ट आंसर है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र को आप सही कर सकते हो। उसके पश्चात हमारा क्वेश्चन आता है कि विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। एकीकरण को हम क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं, उदारीकरण या प्रतियोगिता कहते हैं। क्या कह सकते हो आप? अब क्वेश्चन साफ है ना यहाँ पर। विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निजीकरण, उदारीकरण, प्रतियोगिता। देखिए प्रतियोगिता तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाता है। निजीकरण तो प्राइवेटाइजेशन होती है, तो उसको तो हम रख ही नहीं सकते। और उदारीकरण मतलब होता है छूट देना, विदेशी देशों के बीच एकीकरण की भावना नहीं करता है, तो इसका मतलब हुआ आंसर बी सही है। आंसर बी है भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन जो होती है विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया होती है,
यानी ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हम विश्व के हर क्षेत्रों से जुड़ पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है भूमंडलीयकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही आंसर सही है, तो बी पे आप टिक कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार गठन की आवश्यकता तो ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। अब देखिए कथन हमारे पास 4 है। स्वतंत्र जिम्मेदारी के लिए सरकार बनाना संभव है, स्वतंत्र जिम्मेवारियों के लिए सरकार बनाना संभव है। दूसरा, सरकार का गठन विशेष रूप से राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। तीसरा है, सरकार का गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक दलों तक ही सीमित है। चौथा है, सरकार केवल उन राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जा सकती है जो निर्वाचित और जिनके पास बहुमत हो। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है। आप चलिए देखते हैं विकल्प को। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प ये कहता है कि ये कथन 1 और 2 सही है। कथन बी कहता है कि 1, 3 और 2 और 3 सही है। कथन सी कहता है कि तीसरा सही है। कथन डी कहता है केवल कथन चौथा सही है। यहाँ पर तो बहुत सी बातें बता दी गई, लेकिन बात यहाँ पर देखिए, स्वतंत्र जिम्मेदारों के लिए सरकार बनाना संभव है। देखिए स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए सरकार बनाना संभव है, ये गलत है। यानी पहला तो एलिमिनेट हो गया, और पहला एलिमिनेट होने के कारण क्या हुआ, ए और बी भी एलिमिनेट हो गया। कि जब हम पहले को गलत साबित कर दिए तो देखिए जो जो ऑप्शन में पहला होगा वो तो अब गया काम से, तो ये तो गया। सरकार का गठन विशेष रूप से राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, चलिए ये भी गलत है। तो दूसरा गलत हुआ, तो यानी पहला और दूसरा ए और बी तो चलिए गलत था ही और गलत भी है। अब रह गया, क्योंकि इस ऑप्शन में देखिए तीसरा भी मौजूद है। अगर हम बी को गलत कर रहे हैं और ए को गलत कर रहे हैं तो बी में तीसरा भी है, और तीसरा ये कहता है कि सरकार का गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक दलों तक ही सीमित है। गलत बात है ये भी। इसका मतलब देखा जाए तो तीनों एलिमिनेट हो गए, ए बी सी तीनों ही एलिमिनेट हो गए। रह गया चौथा, सरकार केवल उन राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जा सकती है जो निर्वाचित और जिनके पास बहुमत होता है। ये बात करेक्ट है। सरकार उसी की बनाई जाती है जिसके पास जो है बहुमत होती है और जो निर्वाचित होते हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री उसको बनाए जाते हैं जो कि निर्वाचित सभी में से जितने भी बहुमत प्राप्त करने वाले दल में से एक व्यक्ति को बनाया जाता है। तो यहाँ कथन जो है चौथा सही है कि सरकार केवल उन राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जा सकती है जो निर्वाचित हो और जिनके पास पूरी बहुमत हो, वही सरकार बना सकते हैं। यानी चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही गया। उसके पश्चात हमारा 20वां जो MCQ है, जो कि लास्ट है, अंतिम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर की सिलसिला चलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए 20वां क्वेश्चन ये है कि मिस एम ने अपने स्वयं को व्यवसाय के लिए ऋण लेने के लिए पास के एक बैंक से संपर्क किया। साथ ही एक स्वयं सहायता समूह जो उसके गांव में चल रहा है, बैंक ने उसको ऋण आवेदन को अस्वीकार कर दिया, यानी ऋण देने से मना कर दिया, जबकि स्वयं सहायता समूह ने उसे समर्थन देना स्वीकार कर लिया। आखिर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि ऋण उपलब्ध कराना निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज बैंक को आवश्यक है। यानी कौन से दस्तावेज जो है मिस एम ने लेके नहीं गई, लेकिन स्वयं सहायता समूह को अपने व्यवसाय के लिए मिस एम को ऋण आवेदन की मंजूरी के लिए आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, कौन सा दस्तावेज है जो यहाँ पर देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बैंक के लिए ज़रूरी है। क्या ऋण हेतु आवेदन ये तो नहीं हो सकता कि ऋण हेतु आवेदन, क्योंकि ऋण हेतु आवेदन दोनों के लिए को चाहिए, तो दोनों में से देखिए दोनों के पास रखा था, यानी दोनों को ही मंजूरी देना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर बैंक तो दिया नहीं, तो ऋण हेतु आवेदन तो हो नहीं सकता। उसके बाद देखा जाए व्यवसाय पत्र, तो व्यवसाय पत्र दोनों को ही चाहिए, क्योंकि दोनों ही आप जब भी बैंक में जाइएगा तो आपको व्यवसाय भी पूछा जाता है कि आप कौन से कार्य करते हो, तो व्यवसाय पत्र दोनों को चाहिए। उसके बाद है संशोधित पर दस्तावेज। देखिए ये कुछ हद तक बात यहाँ पर खटक रही है। उसके बाद हम डी देख लेते हैं ऑप्शन, वचन पत्र मांगे और वितरण पत्र ली। देखिए ये तो दोनों के लिए ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों तो उनके पास थी, लेकिन एक पत्र जो था संप्राशिक पर दस्तावेज वो मिस एम के पास नहीं थी, जिसके कारण जो है सरकार ने यानी एक बैंक ने उनको ऋण देने से मना कर दिया। लेकिन संप्राशिक पर दस्तावेज जो है स्वयं सहायता समूह के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना भी वो
उसको हेल्प कर सकती है, लेकिन बैंक को ये इम्पोर्टेंट दस्तावेज लगता है, इसलिए बैंक जो है ये दस्तावेज मांगेगा ही मांगेगा। तो हमारा आंसर जो हो गया सी, संप्राश्निक पर दस्तावेज, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसी कारण जो है मिस एम को जो है बैंक ने ऋण नहीं दिया। तो ये सी ऑप्शन सही गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चाहते हो कि इसी तरह से क्वेश्चन और भी आपको मिलता रहे एमसीक्यू, तो मोबाइल को जितना हो सके इस मोबाइल से दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और तिरपान स्टडी सेंटर यही चाहता है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और सही ज्ञान का उनको एनालाइज कर सकें। और ये सिलसिला आपको कंटिन्यू चलता ही रहेगा। कहते हैं जितने एमसीक्यू में डालूँ अगर उतना कर लेते हो तो आपका जो है सोशल साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके समक्ष रखूँगा। और ये इस तब मिलेगा जब आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। शेयर तो इसलिए ज़रूरी है कि तिरपान स्टडी सेंटर का हर एक बच्चे तक पहुंचना लक्ष्य है, और वो आपके थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि आपके पास ही व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तो वहाँ पर ये वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है चैनल का नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी जो है वीडियो से आप समझ सकोगी। और आपको तो पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th से लेकर MA तक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, तो सोचिए नहीं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके जो है इस चैनल को अपने मोबाइल में सेव कीजिए।